जी सर, आवाज आ रही है अकरम भाई? हाँ जी, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਲਾਉਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਥਰੂ ਆਊਟ ਜੀ ਸੀਜ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਸ ਹਨ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਵਿਊਅਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਵਿਊਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਰੀਡ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਡਿਵਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ, ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਬੂਤਰ ਇਜਤਮਾਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ 15 ਜੋੜੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। 15 ਜੋੜੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਝੋਲੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਜਤਮਾਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਦਿੰਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੱਛਾ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ, ਜਿਹੜੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ, 11ਵਾਂ 12ਵਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ, 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਇਜਤਮਾਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੀਟ ਅਪ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋਗੇ, ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ ਆਏਗਾ, ਮਸਲਨ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਉਹ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਝੋਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੇਜਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜ ਨੇ, ਉਹ 1.5 ਬਾਈ 1.5 ਦਾ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫੀਡ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੀਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਰਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਨੋਰਮਸ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਥਰੂ ਆਊਟ 12 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਫੀਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਜਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਣਾ ਡਾਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਾਣਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਸ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਕਰਮ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼, ਹਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਹਰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੌਫ ਦੇ ਆਪਣਾ, ਜਾਂ ਹਰ ਛੱਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਫੈਂਸੀਅਰ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੀ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਲੌਫ ਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਬੂਤਰ, ਅੱਛੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨਾ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੋਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ, ਉਹ 10ਵੇਂ 11ਵੇਂ 12ਵੇਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਜਰਾ, ਠੀਕ ਚਨੇ, ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਣਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਗੰਦਮ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਾਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਜ਼ ਫਰੈਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਦਾਣਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਠ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਯੂਜ਼, ਜਾਂ ਤੇਲ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਲ ਦਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਠੀਕ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਬਾਜਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਚਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ, ਮਕਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 18-19 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਦਾਣਾ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਂ ਸਰ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ, ਅਗਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਣਾ 8 ਪਾਣੀ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਦਾਬੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਸੂਈ ਗੈਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਠੀਕ। ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਕਿਲੋ ਦਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ। ਡੇਲੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਕਦੀ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਮਰਦਾ ਤਬੀ ਮੌਤ ਮਰਦਾ, ਕਦੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਬੂਤਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏ, 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਬੂਤਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਦਾਣੇ 'ਚ ਫੰਗਸ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਬਜ਼ਾਹਰ ਦਾਣਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਫੰਗਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਲਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 1 ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਾਣਾ ਧੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੁਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਵੈਕਸੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦਾਣਾ ਧੋਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਦਾਣਾ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ? 2 ਦਫਾ 3 ਦਫਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ, ਯਾਨੀ ਟੱਬ ਉਹਦਾ? ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟੱਬ। ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਕਿਲੋ ਦਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੱਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ 30 ਕਿਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਲਕਾ ਉਹ ਖੋਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਖੁਦ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਕਦੀ ਪਾ ਹੀ ਨਾ। 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਣਾ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 8 ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਫਿਰ ਮੈंने ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਲੀ ਦਾ ਕੇਕ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪਲਟਣਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਸੁਕਾ ਕੇ, ਫਿਰ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾਣਾ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਦਾਣਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਦਿਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧੋ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾਣਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 12 ਮਹੀਨੇ ਆਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਜ ਬਣਾ ਲੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੁਲਾ ਲੇ ਕੁੱਟਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਕੱਢਿਆ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਣਾ ਖੁਦ ਧੋਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮਨ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲ ਦਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹਵਾ ਮਰਵਾ ਲਿੱਤੀ, ਛਾਣ ਕਰਵਾ ਲਿੱਤਾ, ਜਨਾਬ ਦਾਣਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਫੁੱਲੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਡੀਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਪਰੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਡੀਪ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾਲ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਫੁਲਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਫੁੱਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਉਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ, ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਟਅਪ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ 15 kg ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 2 CAC ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ। 2 CAC ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, 1000 ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ 16 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ 365 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ ਅਕਰਮ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਮਾਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪ ਦੱਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਦੀਆਂ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀਟਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਗੋਲੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਬੂਤਰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਇਨਟੇਕ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। 2 ਗਲਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 8 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ 6 ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਠੀਕ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਗਰ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ CAC ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ 90 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਲੱਸ ਹੈ CAC 1000 ਪਲੱਸ ਵੱਡੀ 20 ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਲੰਬੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹ 360 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ 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 ਠੀਕ। ਬੜੀ ਉਸਤਾਦ ਵਾਹ। ਅਕਰਮ ਅਕੀ ਦੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਅਲਾਮਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਕਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਟ ਗਏ, ਕਦੀ ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 50 ਹੈ ਤੇ ਉਹ 50 ਹੀ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 51 ਨਾ ਹੋਣ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘਟਦੀ ਵੱਧਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੋਲੀ 100% 12 ਮਹੀਨੇ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲਿਵਰ ਟੌਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਵਿਟਾਸੋਲ ਵਿਟਾਸੋਲ ਬੀਟਾਸੋਲ। ਵਿਟਾਸੋਲ ਸੁਪਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਠੀਕ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਜਿਹੜੇ ਪਾਊਡਰ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ੇਪਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੀਖਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੁਮਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਊਡਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਵਿਟਾਸੋਲ ਸੁਪਰ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਲਾਈਟ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਓਗੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹੂੰ ਵੀਟਾਸੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀਟਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਟਾਸੋਲ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ 20 ਜੀ ਸਾਲ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਈਮੋਡੈਕ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਈਮੋਡੈਕ ਪਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਸਾਈਮੋਟੈਕ ਜਾਂ ਸਾਈਮੋਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਮੋ ਜੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੋ ਸੇਮ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼। ਕੰਪਨੀ ਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਅੰਡਿਆਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਬੂਤਰੀ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬੱਚਾ ਕੱਢੇਗੀ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰੀ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਝਿੱਲੀ ਉੱਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਇਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਡੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਈਮੋਡਿਕ ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਵਿਟਾਸੋਲ ਸੁਪਰ। ਵਾਈਟਾਸੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੰਥਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਈਮੋਡਿਕ ਔਰ ਵਿਟਾਸੋਲ ਸੁਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵਾਈਟਾਸੋਲ। ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਈਵੀਓਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵੀਓਨ एवियन कैप्सूल 400 ਵਾਰ कैप्सूल 200 या 400? 2 400 आते हैं ना? 400 ਉਹ 400। ਤੁਸੀਂ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਜ਼ਮਨ ਦੇਣਾ। ठीक है। और लेट्स सपोज अगर कोई ਹਾਂਜੀ मादी अंडे तो बंद हो जाती है। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं हबीब भाई वास्ते, हबीब मुगल साहब वास्ते एक मैसेज है। मैं बार बार उन्होंने रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं अपनी ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट शायद हो नहीं रही या की चक्कर है। मैं चाह रहा था अगर वो भी विचकार सारे शामिल हो जाते तो बेहतर है, लेकिन जी एक्सेप्ट जी नहीं हो रही। हो करो सकता है करो मेरी तरफों कोई, हो जी सकता जी है मेरी तरफों करो कोई इशू आ रहा है, क्योंकि अप्रूव कर रहे हैं लेकिन अप्रूव नहीं हो रही। जिस तरह थोड़ा अप्रूव होया ना, इस तरह उन्होंने जी जी अप्रूव नहीं हो रहा शायद, की वजह चलो समझ करो नहीं आ ट्राई जी रही। करो एनीवे तुम जी कंटिन्यू करो सर। जी ठीक। उस्ताद अकी साहब तुसी कंटिन्यू करो सर, तुसी गल कर रहे हो।
ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਡ ਵਾਲੀ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਖੁੱਡੇ ਜੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਟਅਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਤੀਆਂ, ਖਵਾਓ ਪੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਖਵਾਓ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਈਵੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮਨ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਡੇ ਛੇਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਅਗਰ ਲੈਟਸ ਹਾਂਜੀ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਈਟਾਸੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜੁਜ਼ ਹੈ, ਵਾਈਟਾਸੋਲ ਔਰ ਸੀ ਪਲੱਸ ਦੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਸੀ। ਐਵੀਓਨ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ। ਉਹ ਉਹ ਕਲੈਰਿਸਿਡ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਇਫਜ਼ੇ ਮਾਤ ਕਦਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਫॉर क्योरेबिलिटी वास्ते करते हो कि अगर कोई आ गई प्रॉब्लम तो फिर करते हो? नहीं नहीं जी, वो प्रोसेस यानी कि हर महीने दी यकम 2-3 ਨੂੰ। अच्छा। ਉਹਦਾ ਕਲੈਰਿਸਿਡ 500। ठीक। क्लैरसिड 500 500 mg। ठीक 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 है। ठीक है जी। ठीक है टैरीविड टैरीविड जी जी। ठीक है। माउफीस्ट माउफीस्ट सही है। अमोक्सल नो फीस। ठीक है। MOFEST माउफीस्ट। दोबारा करना। MOFEST माउफीस्ट 500 मोफिस mg। मोफिस सिरप हाँ जो है, जी सिरप जो है मोफिस। हाँ जी ठीक। हाँ जी। अमोक्सल 500। जी 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 जी। मर्सिप ਇਹਦੀ स्पेलिंग करो। MERCIP मर्सिप। ठीक है ठीक है। ये ते लिवर टॉनिक टाइप चीज है ना ये? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है। ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਾਊਫਿਸਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ठीक है ठीक है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰੀਵਿਡ ਗੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਨਮੂਨੀਆ, ਟਾਈਫਾਇਡ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੁਖਾਰ ਵਾਸਤੇ जी। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟੈਬਲੇਟ ਸੀ। ਇਹ अच्छा 5 माशाल्लाह। ਜਿਹੜੀ ਟੈਬਲੇਟ ठीक ਨੇ, हो गया। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਯਕਮ 2-3 ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਜਤਮਾਹੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਦੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਅਕਰਮ ਮੱਕੀ ਤੇ ਖੁੱਡੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ 2-3 ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। तभी मौत यानी कि मरते अच्छा ने कुछ 4 साल बाद, कुछ 7 साल बाद। ऐसा नहीं होया कि बड़ी कबूतर गल। लगर्जी के नाल या दाने तो ना या वैक्सीन तो कबूतर मरे। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? गैलीमून NDH9। ਅੱਛਾ NDH9 ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਕਰਮ हाँ ਭਾਈ, जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਵੇਅਰ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀਏ, ਵੀਕਲੀ ਰੱਖੀਏ, ਮਹੀਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਹਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਜ਼ਾਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? जी इंशाल्लाह जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ इंशाल्लाह ताला ਉਹਦੇ ਖੁੱਡੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸਰ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਅਗਰ ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਹਬੀਬ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਵ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਸਕਨੈਕਟ करो ਕਰਕੇ करो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। करो जी, करो ऑनलाइन करो जरूर रहना इंशाल्लाह, तो होएगी इंशाल्लाह। जी ठीक है ना? इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह मैं उन्होंने लैंड दी। थैंक यू थैंक यू। जी ओके जी मेहरबानी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाल है हबीब भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। वकार भाई आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? सच्ची बात है, एक बिल्कुल सच्ची बात करूंगा मैं इसमें लाइव उस पे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, आपको पता ही है। और मैं जी इस पे जी बिल्कुल अनपढ़ हूँ, कोरा जाहिल हूँ। ठीक है ना? जी जी। तो इस वजह से मैंने पहले लैपटॉप से करने की कोशिश की है, नहीं हुआ। तो अच्छा वो उसके अंदर मुझे कोई इशू आ तो इंशाल्लाह देख लेंगे, सीख लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो फिर मैंने इसी वजह से फिर मोबाइल से किया, तो मेरे ख्याल से मोबाइल में ये नहीं, इशू आ रहा है कि एक पर्सन इस को पे आप ले तस्वीर सकते हैं, क्लियर है। एक से। इस पे तस्वीर अच्छा, आपकी ऐसे बड़ी ही है। क्लियर है। हाँ जी। अच्छा, उस पे उस पे बड़ी डार्क आ रही थी, अंधेरा आ रहा था। यार सर, हम वैसे भी डार्क ही हैं, इतने कौन से अच्छे, कोई हमने को फ्लैश लगाना होता है बस। खाली सारी चमक सकता है हमारा, बाकी और कोई चीज नहीं चमक सकती। अल्लाह ताला सुनाए, खैर खैर करे खैरियत से आप। हैं, ठीक ठाक? मेरी जी बात भाईजान अल्लाह का। अकरम भाई की आप मेरे ख्याल बातें वगैरह सुन रहे होंगे। जी जी, मैं सुन रहा था, मैं सुन रहा था। हाँ, बड़ी जबरदस्त उन्होंने बातें की हैं। यही सवाल हबीब भाई आपसे है। देखिए, हम लोगों को बेसिक्स पे जाना चाहिए, हम बेसिक्स पे शायद नहीं जाते। जो भी चीजें डिफरेंट, कम से कम एक ऐसे जो लॉ ऑफ मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं जो हम लोग हर बंदा अपने अपने मुताबिक फॉलो करता है, अगर उन हाँ बेसिक्स को जी लेके चले तो मेरे ख्याल से वो बड़ी जबरदस्त चीज है। कुछ ना कुछ तो हमें सीखने को मिलेगा। क्या ख्याल है आपका? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अपना अब मैं वकार भाई, बात ये है कि जो बेसिक आपने वो क्वेश्चन किया ना लॉ ऑफ मैनेजमेंट के हवाले से, असल हाँ में हाँ। अगर हम इसको लेते हैं ना, इंटरनेशनली लेते हैं, जहाँ 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 पे शौक है कबूतरों का, हम्म। तो वो उनकी बेसिक, मतलब वो इसको हल्का नहीं लेते। बिल्कुल जबरदस्त वो बात। इसको हल्का नहीं, इसीलिए तो मैंने इस पर सवाल सबसे उठाया है कि ज्यादा। इसके बगैर गुजारा नहीं है। हम लोग इन चीजों बेसिक्स पे कभी हाँ नहीं जी। जाते, ना बताते हैं। कई से ऐसे जी जी शागिर्द यानी उस्तादी शागिर्दों में भी सीनियर्स भी हैं, वो बेसिक्स की बात नहीं करेंगे कि यार दाना क्या है, सफाई क्या है, धोना है नहीं धोना, क्या करना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि सीखना बहुत जरूरी है। मेरा ख्याल से तो ये, हाँ जी जिस तरह स्कूलिंग में एडवांस मॉन्टेसरी नर्सरी है, उसके बाद वन में जाया जाता है, तो शायद ये मेरा ख्याल से बच्चे को वो अलिफ बे और एबीसी हाथ से पकड़ के सिखाने वाली चीजें हैं। मेरा ख्याल से बेस यही है, सब हाँ चीजें। जी। क्या कहते हैं? देखें वकार भाई, बात ये है कि कहते हैं कि जगह चेंज होने से असूल व ज़वाबित भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है। जबरदस्त तो बात। ये, आप ये देखें कि गोरा ये कहता है कि अगर आपका 6x6 का केज है ना, आप उसमें 18 पेयर रख सकते हैं। 18 पेयर हम्म। आप उसमें रख सकते हैं। ठीक है। और इवन यहाँ तक यूरोप में कई दोस्तों से बात होती रहती है। ठीक है। वो कहते हैं कि कोई हमारे पास आया दोस्त, वो आके उसने हमारा लॉफ्ट चेक किया, तो जब उसने देखा कि 4 या 5 परिंदे ज्यादा हैं, और वो अंदर कोई बाल्टी सी पड़ी हुई है, वो उस पे बैठा हुआ है, कोई इधर उधर बैठा हुआ है, रोशनदान में बैठा हुआ है, तो उसने कहा तुम लोग कबूतरबाजी नहीं सीख सकते। ठीक है। तुम लोग जुल्म कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। बहरहाल उनका उनका इस तरह हमने पाकिस्तान में ये देखा है कि बिल्कुल छोटा सा डब्बा, बिल्कुल छोटा सा, जिसमें मतलब बमुश्किल वो अ, मतलब हाथ डाल के अंदर से निकालते हैं। जो हमारे गांव में हवेलियां होती हैं, वहां पे आपने देखा होगा कच्चे जो केजेस होते हैं। ठीक है। वो अंदर से 100 कबूतर निकाल लेते हैं। ठीक है। कोई शक नहीं। तो लेकिन मसला क्या है भला? मसला ये है कि लोग कहते हैं कि भाईजान वो गोरे हैं, हम लोग इस तरह करते हैं। मसला भाईजान ये है कि जब बीमारी आती है ना, इस जैसे जो 100 केजी से निकालते हैं ना, वो एक दफा सफाया करके जाती। आप तो एक दिन गए हैं ना वहां पे, आप एक दिन गए हैं, आप इंस्पायर होके आ गए हैं, यार बच्चों की पलवाई भी बड़ी अच्छी है। ठीक है। और इसने मट्टी का केज बनाया हुआ छोटा सा। असल मैंने ये चीज देखी है कि जिन बंदों ने पाकिस्तान में भी लॉफ्ट मैनेजमेंट की है, वो दूसरों के लिए मिसाल बन गए।
ठीक कोई है। शक नहीं। उनमें सर उनमें सरे फहरिस्त मैं लाजमी नाम लूंगा शेख हुसनैन साहब। ठीक है। आप उनका पाकिस्तान में भी देख लें, उनके लॉफ्ट के नीचे जाली है। हम्म, लॉफ्ट के नीचे उनकी जाली है। अब वो होता ये है कि बीट जो है, बीट या कोई दाना जो है वो नीचे गिर जाता है। फिर हमने इतने इतने बड़े हम्म। उनके लॉफ्ट देखे हैं, उन्होंने तादाद को एक्सेस मतलब उससे एक्सेस किया ही नहीं अच्छा है। अच्छा अभी भाई, ये एक्सीड किया ही कटिंग नहीं ऑफ मैं बात कहूं, देखें हम लोगों ने अपने यानी हमारे जो शौकीन हजरात हैं, उन्होंने अपने जो हाँ जी। उनके सोर्सेज है उसके मुताबिक ही उन्होंने शो करना है। इसीलिए देखें, कोई बंदा जिसके जाहिर है, आपने देखा है, इस पे कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी छतें बनी हुई हैं, ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा लोगों ने शो करे। अभी मैं किसी इसमें देख रहा था कि उसके अंदर हीटर भी जो है वो इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है। तो ये तो हर एक की जी जेब की बात है। बात दरअसल ये है कि जी वो तो एक यानी ओवर एंड अबव चीजें आ जाती है ना, जिसको जिसके पास हर चीज सहूलत मुयसर है वो करेगा। हर शौकीन का दिल तो करता है कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा इन पे करूं, लेकिन देखें उससे अपने बच्चों का भी पेट पालना है, उससे आजकल के जो हमारे सिलसिले हैं हर एक ने अपने अपनी जेब के मुताबिक चलना है। बात ये है कि जी चाहे जी 6x6 का हो या 3x3 का हो, बेसिक्स क्या होनी चाहिए जिसकी वजह से देखे बीमारी उधर भी आ सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं है। हम्म मैं ऐसे कई गोरे हजरात को जानता हूँ जिनकी तबाही की तबाही, और उनके शायद मेरे ख्याल से सैकड़ों की तादाद में मरते हैं फिर। ठीक है, वायरस जो है जी वो जी देखे, वायरस ऐसे भी एक कैरियर है ना वायरस। वायरस को ना हम हाँ जी एंटीबायोटिक से रोक सकते हैं, ना कर सकते हैं, ठीक है। वायरस, फर्ज करें मैं और जी आप किसी भी शॉप पर गए, वहां पे आप आपके घर में अगर खुदा ना खास्ता वायरस है, आपने किसी सेब या फ्रूट को हाथ लगाया और मैं उधर से मैं चला गया और मैंने उसको लगाया, तो हो सकता है आप कैरियर थे, आपने वहां तक पहुंचाया और वहां से कैरियर बन के मैं अपनी लॉफ्ट तक आया। हवा के जरिए आ सकता है, सब कुछ हो सकता है, बीमारी आ सकती है। बेसिक्स क्या होनी चाहिए कि चाहे किसी का छोटा खुटा है, यानी है उसने बनाया है, चाहे किसी का बड़ा है, जो चीजें दोनों पे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए कि यार ये चीजें करनी चाहिए। बल्कि मैं तो आपसे एक सवाल ये करूंगा कि आप जो आप थ्रू आउट द ईयर, जो मैंने उस्ताद अकरम अक्की से भी किया, कि जो आप बेसिक्स नहीं छोड़ते सर्दी गर्मी के, यार उसकी वजह से आप समझते हैं यानी की ऑफ सक्सेस है आपकी, एक शौक के हवाले से, ब्रीडिंग भाईजान, के हवाले से, अगर कबूतरों की, वो चीज बताएं। पुकार भाई, अगर अगर लॉफ्ट की मैनेजमेंट के हवाले से बात करेंगे ना, तो वो और हम्म ब्रीडिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। बल्कि रूटीन जो है पूरे हम्म साल की, वो एक अलग, टोटली अलग चीज है। मैं हम्म। मेरा ख्याल से अभी भाई डिस्कनेक्ट हो गए जी, दोबारा ज्वाइन करवाने की कोशिश करते हैं उन्हें। जी सर, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, जी जी। हाँ जी, दरमियान में कॉल आ रही थी। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, सबसे पहले पहले काउंट करती है आपकी आपके लॉफ्ट की लोकेशन, कि आपने अगर छत पे बनाया है या अपनी हवेली में बनाया है, तो वो ऑल द टाइम वो छांव में तो नहीं रहता। अगर छांव में भी रहता है, वो उसमें किसी किसी तरीके से उसके अंदर धूप आती जाती है, मतलब धूप का उसमें या हवा का गुजर है। उसके बाद हम्म अपना वकार भाई देखें, जब आप मैनेज करते हैं उसको, तो मैं ये कहता हूँ, देखें, अब सबसे कामयाब मैनेजमेंट तो ये है ना। अब रखने को तो आपको क्या है, आप 6x6 में आपको मतलब किसी ने आपका चालान नहीं कर देना। आप उसमें 70 भी हम्म। रख सकते हैं। ठीक है। रखने ठीक है। को कामयाब कामयाबी तब है जबकि आपने रखे हुए हैं, आपकी ब्रीडिंग भी अच्छी चल रही है, और आपके कबूतर बीमार भी नहीं हो रहे। हम्म। ठीक है। इसमें मैं कुछ चीजें करूंगा। मैं सबसे पहली बात यह है कि तादाद ना बढ़ने दें अपने अपने डब्बे में। तादाद जितना जितनी उसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी को ओवर स्टफ ना करें, उसको बढ़ने नहीं दें। ठीक है, ओवर क्राउडेड। ओवर क्राउडेड ना करें। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि दाने का एक टाइम जो है वो फिक्स होना चाहिए। दाने का एक टाइम वो जबरदस्त। फिक्स होना चाहिए। आप उसी टाइम पर दाना डालें।
अगर आप बंद करते हैं तो बंद करें। अगर बाद ऐसे दोस्त हैं उनके आगे विड लगे हुए हैं, वो रात को अंदर वाला दरवाजा नहीं बंद करते, ठीक है। तो बाद ऐसे हैं कि वो बंद करते हैं। मैं तो गर्मी सर्दी में बंद करता हूँ अंदर वाला दरवाजा भी, ठीक है। और ठीक है। मेरे कबूतरों को इस चीज की आदत भी है। अच्छा, उसके सही बाद है। उसके बाद कुछ ऐसे बंदे हैं कि वो अंदर पानी रखते हैं, पानी बाहर कर देते हैं, दाने के साथ ही अंदर रखते हैं, उसके बाद बाहर कर देते हैं। मेरी रूटीन ये है कि मैं गर्मियों में पानी वहां से नहीं उठाता, गर्मियों में पानी सही है। पड़ा रहता है, ठीक है। सर्दियों में मैं जो है वो सिर्फ दाने के साथ पानी देता हूँ। और मतलब फ्रेश वाटर उस मतलब बहुत कम में मेरा हुआ कि मैं उसमें कोई मसाले डालूं, ये करूं वो करूं। बल्कि मैंने, वकार भाई, मुझे इस चीज का तजर्बा हुआ, एक्सपीरियंस हुआ कि मसाले डालने से सर्दियों में कैंकर की बीमारी आ जाती है, जिसे हम कैंकर कहते हैं। ठीक है। गला पक जाता है, अंदर तक पक जाता है। अब देखें आप, मैंने इस चीज को महसूस किया। मैं बाय द वे एक शादी पर गया, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने पालक गोश्त और चावल बनाए हुए थे, ठीक है। तो मैंने वो थोड़ा सा डाल के तो मैं साइड पे होकर खा लिया। आप बिलीव करें वकार भाई कि मैंने ये महसूस किया कि मैंने घर आके इतना पानी पिया, इतना पानी पिया, वो मेरा लेवल ना हो। इस कदर मेरी जुबान खुश्क हो अंदर तक, ठीक है। इस कदर मैं ये कहता हूँ कि यार, जिस बंदे को हम कहते हैं ना 4 काली मिर्चें डाल लें, वो कहता है यार 10 ही डाल लो, सर्दी बड़ी ज्यादा है, ठीक है। हाँ। फिर अगर किसी को कहते हैं 2 बड़ी बड़ी इलायची डाल लें, वो कहता है बड़ी इलायची भी डाल लो, साथ कुछ और भी डाल लो। मतलब ये एक मेंटेलिटी हमारे यहाँ पे, जिसको आधी गोली बतानी ना उसने पूरी दे देनी है, जिसको चौथा हिस्सा बताना है उसने पूरी हम्म, दे देनी है, जिसको चम्मच का चौथा हिस्सा बताना है पाउडर का, उसने पूरा डाल के चेक करना, यार कबूतर ज्यादा बीमार है, ठीक है। मैं हम्म, सर्दी सर्दी हो या गर्मी हो, मैं कोशिश करता हूँ फ्रेश वाटर। जिन दिनों में हम्म, शीत वाली गर्मी सर्दी होती है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, और आपके मतलब आपको फील होता है, उन दिनों में मैं नीम गर्म, थोड़ा सा नीम गर्म। गर्मियों में उसमें पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट्स हम खुद बना लेते हैं, मतलब मीठा सोडा और नमक और शक्कर, ये तीनों चीजें इक्वल हम्म। रख के, मीठा सोडा, नमक ठीक और है। शक्कर, ये तीनों चीजें इक्वल रख के उनको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके एक डब्बे में डाल लेते हैं। वो एक बड़ा चम्मच जो है वो 1 लीटर में डाल देते हैं, ठीक है। ल- तो उससे होता ये है कि मतलब कबूतर जो प्यास महसूस करते हैं, हम्म, उनको में ये लगता है कि हमने जितना मर्जी पानी पिया ना, वो प्यास नहीं बुझ रही। जब ये असल में तो हम्म, डिहाइड्रेशन इसी का नाम है। हम्म, जितना मर्जी पानी पिया ना, डिहाइड्रेशन किस चीज का नाम है? इस चीज का नाम है कि पानी पीते जरूर हैं, बल्कि ओवर ड्रिंक करते हैं। वो पीते हैं लेकिन हम्म, उनको लगता है कि यार ये, अच्छा, अब वो जब पानी पीते जाते हैं ना, तो पानी ही बाहर निकलता है, और पानी अकेला नहीं निकलता, साथ नमकियात निकलते हैं। तो वो नतीजा ये होता है कि 2 या 3 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद, ठीक है, कबूतर जो है वो बेचारा नुक्कर पे लगा होता है। वो शाम को आप दाना डालते हैं, वो नहीं खाता, या इक्का दुक्का चोंच मारता है। दूसरे दिन जो कबूतर, वो आप मतलब उसको संभाल नहीं सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप, मेरी गर्मियों में ये रूटीन है। मैं, अच्छा, जो मैंने आपको बताया, नमक, मीठा सोडा और शक्कर, ये अगर आप इक्वल ले लें, ठीक है, इक्वल लेके आप इनको मिक्स करके रख लेते हैं, अगर आप ये डेली भी डालें सहद गर्मी में, आप बिलीव करें इसका कोई नुकसान नहीं, ना आपका कोई कबूतर बीमार होगा, खाएंगे भी पूरा, पानी भी पूरा पूरा पिएंगे।
जितनी उनको जरूरत अच्छा है। अभी मैं आपकी बात बात काट रहा हूँ। अभी उस्ताद अकरम अकी साहब ने वो बात की थी कि वो कैल्शियम की जो गोली आती है CC 100 जो है 1000 शायद आती हाँ है, जी। वो यूज हाँ जी। करते हैं डेली बेसिस पे 16 लीटर पानी में, दो उस पर। ठीक है। तो आपकी जो रूटीन है वो ये, यानी ये जो मीठा सोडा और नमक की आप बात कर रहे हैं, अच्छा इसके अंदर एक छोटी सी चीज मैं करूंगा इसको क्लियर। नमक जो है जी क्या वो परिंदों के लिए, कबूतरों के लिए हो गया, परिंदों के लिए या जानवरों के लिए बेहतर है? भाई, उनको कोई मसला इसका ही एक नहीं हुआ। नुकसान भी। जी ठीक जी। है। बताएं। ठीक है। बताएं, कभी ठीक कोई है। मसला नहीं हुआ। कभी कोई मसला सही नहीं है। हुआ, बल्कि बल्कि जो होममेड आप इलेक्ट्रोलाइट्स लिखेंगे ना गूगल पे, आपको ये तीन चीजें ही हाँ हाँ। देगा। होममेड हम्म। इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर पिजन, आपको ये तीन चीजें हाँ ही हाँ। देगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ गर्मियों का। गर्मियों में मैं ये करता हूँ, सर्दियों में मतलब पानी में। अब गर्म जो सर्दी है, सर्दी में दाने में मैं सरसों निकाल देता हूँ और ठीक मोठ है। शामिल कर देता हूँ। दाना, दाना आप पूरा डालते क्या है? यानी जो बेसिक्स आपके दाने में क्या क्या चीजें हैं जो आप पूरी उसमें डालते हैं वो बताएं। भाईजान, मेरे मेरे दाने और में काले बारीक चने, गंदम भी होती है, बाजरा भी होता है। ज्वार तो हमारे बड़ी शॉर्टेज हुई है, मिल नहीं रही। हालांकि ज्वार जो है ये मतलब स्पेशली सर्दियों में मेरी नज़र में बड़ी अच्छी चीज़ है ज्वार जो है। तो उसके अलावा इसमें कुछ दालें होती हैं, मतलब जो दालें हम खाते हैं, ये जो बाजार से दालें मिलती हैं रद्दी दालें, वो नहीं। ठीक है। दालें होती हैं, कुछ सूरजमुखी होता है स्पेशली। फिर सर्दियों में जो है मोठ होता है उसमें। ये कुछ 12-13 चीज़ें बन जाती हैं। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। हाँ जी। ये आप और अपने वकार ब्रीडर भाई एक, कबूतरों को भी, और साइड पे फुट रखे हुए उनको भी सेम यही दाना डलता है? जी भाई जान, सेम ही। और इसमें मैं एक चीज़ लाजमी मेंशन करना चाहूँगा कि उन दोस्तों के लिए जो कहते हैं कि हमें मतलब आए दिन बीमारी का सामना करना पड़ता है, मैं उनको सिर्फ इतना कहूँगा कि वो दोस्त बाजार से मिक्स दाना लेना छोड़ दें। ये बात। वो खुद लेके बनाएं, खुद लेके बनाएं। मतलब जो गंदम खुद खाने वाली गंदम है, वो फर्क आपको आर्जी लगेगा कि बड़ा फर्क आ गया इसमें। जो आपको 55 रुपये में मिल रहा है बाजार से दाना बना बनाया, ये आपको 60 में मिल रहा है। ठीक है। तो आपको आर्जी तौर पे, लेकिन इसका आप ये देखें कि साला साल गुजर जाते हैं भाईजान, बीमारी कोई नहीं। हाँ हाँ। इतनी सर्दी गुजरी है, इतनी सर्दी, आप बिलीव करें कि मेरे मेरे पूरे लॉफ्ट में एक बच्चा मरा है, जो मैंने नोट किया है। और इतनी जबरदस्त पलाई वो हुई है। मैं नहीं भाईजान ये कहता कि मैं आइडियल हूँ लोगों के लिए, लेकिन इतनी देर में जो सीखा है, इतनी देर में जो सीखा है। अब एक बंदा है, मुझे उन लोगों पर भी बड़ी हैरत है जो कि इतने इतने महंगे कबूतर खरीद लेते हैं, लेकिन दाने, जब दाने की बात आती है, ठीक है, तो उस सस्ता। वक्त वो कोशिश करते हैं कि यार पैसे बच जाए। हाँ हाँ। ठीक है। और तीसरी बात दाने की, दाने के ही मतलब जिमन में मैं तीसरी बात ये आपसे शेयर करूंगा कि जिस घर में ये दाल दाना जो है, बाजारी दाल दाना, ठीक है, जिस घर में ये जा रहा है ना, उस घर में समझे बीमारी जा ही नहीं सकती कभी। कोई ना कोई ठीक हो गया। बीमारी, जो बीमारी आएगी सलाम करके जाएगी वहां पे। अच्छा दूसरा, आप दाना धोते भी हैं या नहीं धोते? नहीं, मैं नहीं धोता। ठीक हो गया। मैं साफ नहीं करते हैं? धोता भाई। हाँ जी। जब जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है ना, साफ तो बिल्कुल करते हैं, पंखा लगाते हैं, साफ करते हैं। असल में उस्ताद अकरम अकी का बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह। मेरे भी सीनियर हैं। हम्म। ठीक है, और उनका एहतराम भी है।
और वो बड़े अच्छे ब्रीडर हैं, ठीक है। कोई शक नहीं। और उनके पास 24 आवर्स हैं, ठीक है। हम जैसे आप जैसे बंदे जो हैं, इन्होंने स्पेयर टाइम में शौक करना होता है, ठीक है। तो हम अपनी सहूलत ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि मैं 7 पानियों से धोता हूँ, 7 दफा मतलब, ठीक है। हम्म। उसके बाद उसको पकाता हूँ। वो कम से कम मेरे जैसा बंदा कम से कम 1 माह करे तो मैं कबूतर छोड़ दूंगा। मैं कहूंगा यार ये ठीक होगा। बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ जी। लेकिन वकार भाई ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मतलब अच्छा रिजल्ट है मेरे खुडे में भी। मैं भी NDH9 ही यूज करता हूँ। और इस मतलब आप लाइव आए हैं माशाल्लाह, 42 इस वक्त मेंबर्स हैं। तो मैं एक असल में चीज हम इसमें। लोगों ने ना नया शुरू किया, ट्रेन में अभी भाई मैं बात काट रहा हूँ। मैंने कहा यार ये हर जगह इंटरव्यू होते रहते हैं, कभी बेसिक्स पे कभी बात नहीं हुई कहीं। तो हाँ मैंने कहा जी। यार इस चीज को खुद ही शुरू किया, आप जैसे सब भाई हैं। बल्कि मैं तो आपको एक कहूंगा कि वो जो आपका एक वो आपने स्टार्ट करे थे, जो क्लासेस वगैरह का एक वो जो आपने टीचिंग का स्टार्ट किया था, वो बड़ी जबरदस्त चीज है। उसके ऊपर भी मैं मशवरा ये देना चाहूंगा कि इसको अगर लेके आना चाहते हैं ना कम खर्च बाला नशीन पे, तो जूम के ऊपर लेकर आए। उसके अंदर आपको बड़ा फायदा होगा। जो जिस तरह भी आप एक लोगों असल को में आप वकार चार। भाई, जूम पे आप जैसे दोस्त आ जाएंगे। कुछ हमारे सादे दोस्त हैं, उन बेचारों को अभी ये पूरा पता नहीं कि एंड्रॉयड ही पूरा क्या है, ठीक है। नहीं नहीं, मैं उसकी वजह बताता हूँ। वो जब आप जूम पे आएंगे ना, जी जी। तो वो रिकॉर्डेड होती हैं। हाँ जी। वो आप फेसबुक पे चला सकते हैं, ठीक है। सही है। उसके अंदर ये है कि आपके लाइव जब इंटरेक्शंस होंगी ना, देखें हर चीज सीखना है पहले तो। हम किसी को नोकिया 3310 भी इस्तेमाल करना नहीं आता था, लेकिन ये साथ ऐसे ही साथ है। चीजें आती हैं इंसान को। जब को जुनून होगा, तजस्सुस होगा ना, वो जरूर इन चीजों को सीखेगा। सब यूजर जी जी। फ्रेंडली सॉफ्टवेयर हैं, इतना वो नहीं है कि जो चीजें खराब हो। शायद लोगों को फेसबुक भी नहीं आती थी, लेकिन उसके ऊपर वकार कम से भाई कम जो आप लोगों की। हाँ, हाँ। वकार भाई देखें, एक चीज है। मैं सारे दोस्त हैं, जाहिर बात है, कम्युनिटी का मैं भी हिस्सा हूँ। एक चीज है, हम्म, आप ये देखें कि वकार भाई एक चीज लेके आए हैं, उन्होंने फील किया कि यार पाकिस्तान में ये चीज नहीं है, हम्म, ठीक है। तो उन्होंने उसकी प्राइस निकाली है। लेट इट से, जिस तरह आप वो लेके आए थे बाइनोकुलर, ठीक है, वो हम्म। आप लेके आए थे, दूरबीन लेके आए थे। तो आई डोंट नो कि उसका आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिला। मैंने ये चीज नोट की है कि अगर एक बंदा आपको वो कोई चीज दे रहा है इस तरह की कि वो पाकिस्तान में नहीं है और वो फिट बैठती है, उसका रिजल्ट भी ठीक है और वो होनी भी चाहिए, आप यकीन करें कई ऐसे रस्तू जाग पड़ते हैं, वो कहते हैं लो जी, पैसे कमाना से शुरू हो गए। अच्छा, मैं आपको एक और हबीबा भाई बात बताऊं। ये हमारे जी बिल्कुल जी। सही कह रहे हैं, ये हमारी कबूतरबाजी में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन बाहर ये चीज हाँ चल जी। रही है। हमारे जो हम्म। डॉग्स के शोज वगैरह हैं, जो हमारे फैंसियर है, हाँ जी। इसके क्योंकि मैं भी उसका हिस्सा हूँ, दो तीन का, ये लव बर्ड्स का और इनका कॉकटेल्स वगैरह का। उसके अंदर बकायदा लेक्चर्स होते हैं। और वो लोग तो बाहर से हाँ जी। जो आप लोगों के जजेस और स्पीकर्स आते हैं उनको बुलाते हैं, ठीक है, पैसा खर्च करते हैं। हाँ जी। हमारे इसमें नहीं है, हमारे इसमें नहीं है। लेकिन मैं जी आपको जी। एक चीज बताऊं कि जितना जितना हम लोग एक अपने वसाइल, महदूद वसाइल के साथ कबूतरबाज एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं ना हर वक्त, वो बाकी लोग भी नहीं कर रहे। ये बहुत अच्छी चीज है जो एक लेकर आए हैं, वो बहुत जबरदस्त चीज है। लेकिन एक ओवरऑल अच्छा जितनी हम लोगों वकार की भाई। आपस में community, बाकी नहीं है इतनी। जी जी। वकार भाई, पता क्या, इस पे लास्ट एक मैं जुमला को मैं वापस उसी पे, आपके वो मेजर जो क्वेश्चन है उसी पे हम्म, आऊंगा। शायद आपने कोई और भी पार्टिसिपेंट रखा हो, तो उसको भी मौका मिलना हम्म, चाहिए उसमें। इस पे एक जुमला मैं ये कहूंगा कि भाईजान, अगर एक अच्छी चीज है, अगर उसमें इल्म मिलेगा,
आप बिलीव करें, मैंने खुद देखा है, बाई गॉड मैंने देखा है, बड़े बड़े असाज हैं, बड़े बड़े नाम हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत भी दी, चैंपियन भी रहे हैं। जब मैं उनकी लॉफ्ट पे गया हूँ कभी, तो बीमारी के सिम्टम्स कुछ हैं और दवाई कुछ डाल रहे हैं, और पता क्या कह रहे हैं, यार थक गए हैं, फलां जगह से थक भी, गए। जर्मनी से भी दवाई मंगाई, फलां जगह से भी। अब देखें, इंपोर्टेड जो दवाइयाँ हैं ना, वो कोई सनद नहीं है कि आप बगैर तशीख के दवाई डाल दें और आपके कबूतर ठीक हो जाएंगे। आपके कबूतरों को मतलब कॉक्सी है और आप जो है वो कुराइजा की दवाई डाल रहे हैं और आप कह रहे हैं और उम्मीद रख रहे हैं कि सही हो जाएगा, बल्कि उसकी इम्यूनिटी अंदर जो बाकी थोड़ी बहुत रहेगी वो टूटेगी, वो नीचे जाएगी, और आपका मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा, शरह मुआत हम्म। जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। तो मैं इस सिलसिले में मैं एक ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपको नहीं पता चल रहा ना कि बीमारी कौन सी है, तो आप कम से कम जब तक आपका लैब का टेस्ट नहीं आता या आपको कोई अच्छा बंदा मशवरा नहीं ना देता, आप इम्यूनिटी बूस्टर लाजमी इस्तेमाल करें। ये मैं बहुत बड़ा जुमला कहने लगा हूँ भाईजान, ये जादू की चीज है। इम्यूनिटी बूस्टर अपने घर से खत्म ना होने दें। जिन्होंने कीमती परिंदे रखे हुए हैं, आप जिनके। कौन जी आप कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं इम्यूनिटी बूस्टर्स में? भाईजान, पहले तो लाइजोविट करते थे, अब वो बहुत महंगा हो गया है। हम्म। मेरा हाल है कोई 10,000 को टच कर गया है लाइजोविट जो है। ठीक है। अब हमारे एक दोस्त हैं उमर भाई, उन्होंने उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स भेजी, उनमें इम्यूनिटी बूस्टर है अलग से। ठीक है, वो मैंने अपने घर में इस्तेमाल किया है, उसका भी माशाल्लाह सेम रिजल्ट है। तो वो मैंने कुछ ठीक। डिब्बियां मंगा के अपने शागिर्दों में भी, दोस्तों में भी बांट दी हैं। तो वो है भी सस्ता, ठीक है, अफोर्डेबल तो है। यहाँ लोकल? अब ये, जी नहीं नहीं, लोकल नहीं है, लोकल नहीं अच्छा। है, लोकल ठीक है। नहीं है वो। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब दो चीजें इसमें टिप ही समझ लें। एक तो ये है कि इम्यूनिटी बूस्टर अपने घर से खत्म ना होने दें। जहां पे देखें कि सब्ज बीट है, फौरन 3 लीटर पानी में एक बड़ा चम्मच डाल दें। ठीक है। आप चार ठीक। दिन डालेंगे, आप खुद से कहेंगे कि वाकई यार कबूतरों की अपना भूख भी बढ़ गई, और उनका जो है ना मतलब वो जो सब्ज बीट है वो खत्म हो गई। सब्ज बीट करते ही कबूतर तब है जब किसी स्ट्रेस में जाता है। ठीक है। हम्म। अब इस पे तो अलग से पूरा भाईजान प्रोग्राम शुरू हो जाएगा ना। तो दूसरी जो चीज है, हम्म। दूसरी चीज सेब का सिरका। ये ऐसी जादू की चीज, पहली भी जादू की चीज मैंने आपको बताई, ये ऐसी जादू की चीज है, मैंने, आप बिलीव करें वकार भाई, मैंने इसका असर देखा है ये दानों पे, पिजन पॉक्स पे। 4 दिन मैंने डाला है, 5वें दिन से काले होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, 5वें दिन से काले होने शुरू हो गए हैं, 1 वीक में आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो होके, तो मतलब 10-12 दिनों में वो खत्म हो गए। तो एक तो ये दो चीजें, जो सुन रहे हैं दोस्त, उनको ये दो चीजें मैं कहूंगा कि अपने घर से खत्म ना होने दें अगर आपने कबूतर रखे हुए हैं। तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि बाजार से मिक्स किया हुआ थर्ड क्लास दाना कभी ना लें, खुद मिक्स करें, उसको साफ भी करें। और चौथी चीज मैंने आपको बताई कि दाने का एक टाइम रखें। 5वीं चीज मैंने आपको ये बताई कि वेंटिलेशन मस्ट है, आपके खुडे में वेंटिलेशन लाजमी होनी चाहिए। और जो सबसे फॉरमोस्ट है, सबसे फॉरमोस्ट है, इन सबसे आगे है, वो ये है कि भाईजान खुडों की सफाई किया जाए। ठीक है। आप बिलीव करें, मैंने बड़े बंदों का मैंने विजिट किया, और कईयों ने मुझे व्हाट्सएप भेजा, उस पे उन्होंने मुझे दिखाया, भाईजान ये मेरे कबूतर बीमार हो गए हैं। ठीक है। तो मैं क्या करूं? तो जब उसने वीडियो वीडियो भेजी, तो इतनी 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 लेप चढ़ी हुई है, कबूतरों ने उसी में बना के, मतलब नेस्ट बना के अंडे दिए हुए हैं।
और वो कहते हैं जी ये बीमार हो रहे हैं, अब मुझे हल बताएं। अब उस वो सिचुएशन वकार भाई इस तरह की होती है कि अगर आप अपना लेक्चर शुरू कर देना यार सफाई किया करो, तो वो बंदा इरिटेट हो जाएगा। ऐसे ठीक ही। है, क्योंकि ऑलरेडी बेचारा टेंस होता है, वो इरिटेट आप उस वक्त नहीं उसको बता सकते ना। मैं बताता हूँ कि यार ये तुमने क्या किया है। मैं जो भी मुझसे हो सकता है मैं उसको कह देता हूँ कि यार अच्छा ये बीठे किस तरह की कर रहे हैं, कितना खा रहे हैं, पानी कितना पी रहे हैं, ये पूछ के जितना पास पास जितना वैरी करता है मैं उसको बता देता हूँ यार ये चीजें ले लो, ये चीजें लेके इस्तेमाल। बाज बाज का अल्लाह ताला करम कर देते हैं इसमें। दवाई के इस्तेमाल में वकार भाई दो तीन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दो तीन जुमले में सर कह दूं। जरूर, यही ये ऐसा ऐसा अच्छा जो है ना, ये उसमें चीजों को हम लेकर आएंगे भाई। ये जो चीजें हैं ना, मेरा ख्याल से इस तरह के सेशन आप भी रखा करें, मैं भी रखा करूं। और बकायदा देखें, जिस तरह आज उस्ताद अकरम अक्की साहब ने टाइम निकाला, आपने निकाला, मेरे लिए तो दोनों काबिल एहतराम हो। और भी दोस्तों भाइयों ने कहा, ये मेरे जी जी ख्याल से ये जरूरी है अभी भाई। एक जरूरी नहीं कि हम मीडिया ही के उससे आए, मीडिया के ही उससे आए, चैनल से आए, हम अपने अपनी भी उससे स्टार्ट कर सकते हैं मेरा ख्याल से। क्योंकि कोई हम लोगों ने उसके लिए तो लेना नहीं, या कोई अपने उस पे तो इसको यूज नहीं करना कोई जाती मकासद के लिए। अगर आप भी उसी एक सदका जारिया के तौर पे बातें बता रहे हैं, या अकरम अकी साहब या कोई भी एक्स वाई जेड का कोई शागिर्द है, कोई खाली शौकीन है, उससे भी कोई चीज हमें पते की मिल सकती है। क्या ख्याल है? एक्सेस जी नहीं है बिल्कुल। लोगों का शायद। जी मैं दवाइयों के इस्तेमाल में भाईजान पहले मैंने आपको एक चीज बताई, मैंने वो जो चीजें बताई उनका मैंने खुलासा पीछे बयान कर दिया। हम्म। ठीक है, दवाइयों के इस्तेमाल के हवाले से मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि एक वक्त में कभी भी दो एंटीबायोटिक यूज ना बिल्कुल सही हो गया। करें। एक साथ कभी भी दो एंटीबायोटिक यूज ना करें। अच्छा उसमें एक और चीज जो वकार भाई आप बड़ी कॉमन देखेंगे और इसका शिकार बहुत बड़े बड़े बंदे भी हो जाते हैं, वो ये कि नोविडेट जो गोली है, नोविडेट, ठीक है, गोली या सिरप? उसका दोनों। गोली गोली लगा लें या सिरप लगा लें, उसका फॉर्मूला है साइप्रोफ्लॉक्सासिन। हम्म। ठीक है, अब जो मर्सिप टैबलेट है ये भी साइप्रोफ्लॉक्सासिन है। बिल्कुल ऐसे ही सिर्फ सिर्फ प्रोफेसर। सिर्फ कंपनी का फर्क है। अच्छा अब बहुत सारे बंदों को मैंने देखा है कि वो उन्होंने कोई नुस्खा बनाया होता है, उसमें वो ये दोनों डाल रहे होते हैं, मर्सिप भी डाल रहे होते हैं, नोविडेट भी डाल रहे होते हैं। मतलब बेसिक उनको ये नहीं पता कि यार दोनों तो एक ही चीजें हैं। अच्छा फिर फ्लैजल भी डाल रहे होते हैं, मेट्रोडाइन भी डाल रहे होते हैं, ये भी दोनों एक चीज या है। सिरप भी डाल देते हाँ जी। अब बात ये है कि एक तो मैंने ये चीज आपको बताई कि भाईजान कभी भी एक वक्त में दो चीजें ना डालें इस तरह की, मतलब दो एंटीबायोटिक जो चीजें हैं वो ना यूज करें। अच्छा दूसरी चीज ये है कि आप पीछे एक मैंने वीडियो बनाई थी उसकी एक आधे सर के दर्द का सिरप है वो, एक आधे सर के एक आधे सर के जो है ना वो सिरप है, उसमें मुझे अभी नाम नहीं आ रहा। तो वो जो है ना लोगों ने मशहूर किया हुआ कि यार ये हाजमे का सिरप। मैं जब लेके आया मुझे मेरी एक फीमेल थी तो वो वेट नहीं बढ़ाती थी, तो अभी मेरे ज़हन में आ जाएगा नाम उसका। तो वो वेट नहीं बढ़ाती थी, मुझे किसी ने कहा यार वो इस्तेमाल करो। मैं जब लेके आया मैंने सबसे पहले आके मैंने उसका जो लेबल उसके अंदर होता है वो प्रेस्क्रिप्शन पेपर जो होता है वो मैंने वो पढ़ा। तो मैंने कहा लो ये आधे सर का दर्द जिसको माइग्रेन कहते हैं ये उसका सिरप है, और हम इसको किस तरफ इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने नहीं डाला। ठीक है, बहुत सारी भाईजान इस तरह की चीजें हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं जिनका वजूद ही कोई नहीं है, हैं। जिनका वजूद ही कोई नहीं है। अब आप ये मतलब अच्छा अगर आपको पता चला है कि यार ये जो मैंने दवाई इस्तेमाल की है
मैंने जो दवाई इस्तेमाल की है, लेट इट से एनरोसिन इस्तेमाल की है, ये मुझे नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए थी। हाँ, मोसीगार है जी, मेरे बेटे ने मुझे दिखाया है, मोसीगार सिरप है, ये माइग्रेन का सिरप। मैंने इस पर बकायदा अच्छा। एक वीडियो भी बनाई। अच्छा, अगर आपको पता चला कि एनरोसिम मैंने इस्तेमाल किया है, एनरोसिम मैंने 5 दिन या 7 दिन इस्तेमाल कर लिया है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि कबूतर लेट गए हैं बीमार। और अच्छा, आप ये नहीं करेंगे कि 8वें दिन से आप दवाई चेंज करके तो आप 8वें दिन से एक और एंटीबायोटिक यूज कर लेंगे, नहीं। आप 8वें दिन से एक फ्लैशर कह रहे हैं या फ्रेशर, ठीक है, ये आपको मुर्गियों मुर्गियों की जो पोल्ट्री शॉप्स हैं वहां से मिल जाता है, पोल्ट्री मेडिसिन शॉप, वहां से मिल जाता है। इसका काम क्या है कि अंदर से वो फ्रेश करता है, पिछली जो दवाई के एंटीबायोटिक्स बने हुए हैं उनको खत्म करता है, अंदर से फ्रेश करता है। अच्छा, तो अगर आपको वो फ्रेशर अवेलेबल नहीं है, आप सेब का सिरका भी डाल सकते हैं। कम से कम 3 दिन आप डालें, 3 दिन, 3 दिन डाल के जितने मर्जी मार रहे हैं भाईजान, ये परवाह ना, ये परवाह नहीं है कि भाईजान मेरे कबूतर मार रहे हैं। आप 8वें दिन से अगर दूसरी एक एंटीबायोटिक शुरू कर देंगे, बिल्कुल मर जाएंगे। हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, मैं इस वक्त लाइव में उनका नाम नहीं लूंगा, उनके उनके खुडे पे 7-8 दिन मुसलसल एंटीबायोटिक यूज होती रही, मुहावत जो है वो पता नहीं कितनी डोज में करता रहा। तो उन्होंने जो है ना 10वें दिन जाकर उन्होंने उन्होंने कहा यार मसला समझ में नहीं आ रहा, लैब में टेस्ट करवाएं। लैब में जब टेस्ट करवाया वकार भाई, तो उनके अल्फाज हैं कि जो उनके कबूतरों के जो किडनीज है ना, आप बिलीव करें कि वो जस्ट लाइक जिस तरह बच्चों के कैंचे होते हैं ना, कैंचे इस तरह फूले हुए थे। अब अब किडनीज ने क्या करना है आपको पता ही है, उसने पानी पानी को ये केमिकल से साफ करना है। और वो फूलते कब हैं, कब स्वेल होते हैं, जब उनकी एक्सेस से बाहर बाहर हो गया, आपने दवाई इतनी डाली, इतनी मिकदार में डाली। फिर लोगों में एक आज आपका प्रोग्राम ज्यादा मैंने टाइम ले लिया, लोगों में एक ये बड़ी गलत फहमी है, वो कहते हैं भाईजान, जब कोई दवाई पूछते हैं ना, मैं कहता हूँ यार ये 1-1 सीसी 1 लीटर में डाल लेना। कहते हैं भाईजान हमारे तो 200 कबूतर है, उसमें हम तो 2 ड्रिंकर रखते हैं तब उनका पानी पूरा होता है। तो भाईजान रखना मतलब डालना 1 लीटर ही है, दोनों में 1-1 लीटर डाल लोगों लें। को हाँ जी, दोनों में 1-1 लीटर डाल लें, जितनी जितनी नोक लगेगी नोक लगवाएं, बाद में सादा पानी डाल दें। ये नहीं है कि अब वो 40 सीसी पानी पीता है कबूतर तो वो 40 सीसी वहां से ले ले, ये नहीं है। और ये भी नहीं है कि मतलब सारा दिन ड्रिंकर में दवाई पड़ी है तो वो पड़ी रहेगी, इस तरह से तो हम्म। बिल्कुल नहीं। आप एक टाइम पे, अब वो ओवरडोज हो जाएगा, वो ज्यादा इनटेक हो जाएगा दवाई का। आपने एक टाइम दिया है, उसके बाद आप जब भी दवाई डाल रहे हैं, आप उसके साथ मतलब सुबह के टाइम ओआरएस लाजमी डालें। ओआरएस का ये है कि कबूतरों ने दवाई दवाई वाला पानी रात को कम पिया था, सुबह वो जब पियेंगे उनको जो है वो डिहाइड्रेशन नहीं होगी। जीवकार भाई, ठीक हो गया। काफी बोल दिया मैंने। अच्छा, मैं बस इसको करते हैं, वाइंड अप करते हैं सर। मेरे ख्याल से हमने सेशन को ज्यादा ही बड़ा कर दिया है। अच्छी बात, हाँ जी, हाँ बड़ी जी। आपकी भी बड़ी बड़ी अच्छी। और ये मेरे ख्याल से इसको कंटिन्यू रखना चाहिए अभी भाई। मैं तो यही कहूंगा, चाहे वीकली 2 दफा करें, 1 दफा करें, टाइम के साथ साथ होना चाहिए। तो मैं ना इन एडिशन इंशाल्लाह। 2 चीजें बताऊंगा अपनी तरफ से भी, आप भी उसको जो है ना देखें। एक जो आपने बताया ना, यानी इम्यूनिटी बूस्टर्स वगैरह, उस पे मैं जी ना जी। एक इम्यूनिटी बूस्टर है उसकी, मैं अभी मेरे पास वो नहीं है उसका, मैं पिक्चर लगा दूंगा उसकी। ठीक है, वो नॉर्मली यहाँ पे मिलता है इम्यूनिटी बूस्टर। ठीक है, ठीक है, एक ठीक है। एक आता है एमी विटाल के नाम। ठीक जी है, जी वो जी। भी एक बड़ा जबरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर है वो। मेरे बिल्कुल पास उसकी बिल्कुल। पिक्चर है, मैं आपको जो है ना वो दिखा देता हूँ। बेसिकली उसके अंदर है ना अमाइनो एसिड्स वगैरह, विटामिन बी,
और डेक्स्ट्रोज वगैरह इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लेकिन साथ साथ वो एज ए इम्यूनिटी बूस्टर भी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता जी हूँ कि मैं उसकी इसी वीडियो में जो है ना उसको दिखा सकूं। ये देखें, जी जी। ठीक हो गया। ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही, जो इसका है ना बहुत अच्छा अगर किसी रिजल्ट ने है। इस्तेमाल करना है, ठीक है, इसका तो कार भाई इसको, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। ये लिक्विड टाइप है, इंजेक्शन है। हाँ लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये डॉक्टर्स ने ही, वेटनरी डॉक्टर्स ने ही रिकमेंड किया हुआ है। आप इसको पानी में भी मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का होता है कि जी कि इंट्रामस्कुलर या इंट्रा जी वेनस जो बिल्कुल इंजेक्शन सही है है। वो पानी में हल ना करें। ठीक है ना, लेकिन अगर डॉक्टर, मैंने खुद करके देखा है इसको, पानी में 1 सीसी जो है ना पर लीटर के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर ज्यादा बीमारी आई हुई है तो 2 लीटर के हिसाब, मेरा ख्याल से कोई 500, 450, 500 रुपए का 50 ml का। और अगर कोई अकेला सिंगल कबूतर बीमार है आपका, तो ये देखे ना ऊपर लिखा हुआ न्यूट्रिएंट्स भी है इसमें, तो कोई सिंगल बीमार है तो उसको आप 4 से 5 कतरे भी पिला सकते हैं। इंजेक्ट करेंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन कई दफा इतने कबूतर बीमार हो जाते हैं कि उनको आप इंजेक्ट करेंगे ना तो वो मरने के करीब ही हो जाते हैं बल्कि। ठीक है, ये एमी वाइटाल हाई है, इंजेक्शन है, इसको आप जो है ना इम्यूनिटी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, हबीब भाई जो आपने जिस तरह ये बताया ना इम्यूनिटी बूस्टर का, जिस तरह आपने सेब का सिरका बताया, बेसिकली सेब का सिरका क्या है, वो एंटीटॉक्सिडेंट का भी काम करता है। ठीक है ना, उसके लिए हमारे जो इसके अंदर डिफरेंट, हमारे जो कबूतरों की आंतों में बात बनती है, वो कोई ना कोई टॉक्सिक जरूर बनता है, उसको भी रिमूव करना चाहिए। ठीक है, जी जी मैं कुछ चीजें हैं, हम लोग असल में लोग लेते नहीं है, ले लें तो उनके लिए बेहतरीन चीजें हैं। एक जो है ना जो यानी न्यूट्रिशंस के हवाले से बहुत जबरदस्त एक प्रोडक्ट है बाहर की, लेकिन इसको लोकली बनाया जा रहा है। अब वो मैं लगा इसलिए रहा हूँ, ये मैं किसी की वो यानी जाहिर है बताना जरूरी है दोस्तों यारों को। ये है टॉक्सी स्टॉप के नाम से। ठीक है, सही अगर सही आप है। ये बेसिकली ना डिटॉक्सीफायर है, फीड का जो ना एसिड जो वगैरह है ना फीड वगैरह का, वो भी खत्म करता है, प्रिवेंशन लिवर डैमेज को जो है ना, वो बड़ा उसके अंदर बड़ा कारआमद है ये टॉक्सी स्टॉप। ये मेरा ख्याल से कोई है तो 2750 रुपए का लीटर, लेकिन ये आपका समझ ले 3 साल के लिए काफी है अगर आपके पास 200 से 300 कबूतर हो। ठीक है, सही है। तो जबरदस्त इसको जबरदस्त। जरूर करना चाहिए सब भाइयों का, जो ले सकता है ले ले एक दफा की है, मेरा ख्याल से बार बार रोने से बेहतर है एक ही दफा बंदा रो ले। क्या ख्याल है? जी 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 जी। तो ये चीजें, और उसके साथ अच्छे प्रोबायोटिक्स कोई भी हो, प्रोबायोटिक्स हबीब भाई बहुत सख्त जरूरत है कबूतरों की, हम लोग उस चीजों पे नहीं जाते। जो जी जी प्रोबायोटिक्स है ना वो लाजमन कबूतरों को देने चाहिए। प्रोबायोटिक्स हो गए, जी आपका भाई। इम्यूनिटी बूस्टर हो गया, और ये टॉक्सी स्टॉप वगैरह की जैसी एंटी टॉक्सिडेंट जो है, सेब का सिरका भी वही काम करता है। ये करेंगे तो ये क्योंकि बना ही खास उसके लिए, तो ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं अगर ये इस्तेमाल करते रहें। दूसरा, जिस तरह आप दाना नहीं धोते, तो अगर आप दाना नहीं धोते तो ब्रोमोसेप्ट के नाम से आपको शायद पता होगा, एक मेडिकल की आती है, वेटनरी की डिसइंफेक्टेंट आता है, मालूम है जी आपको जी। उसका? हाँ जी। वो यूज करें। वो जी ब्रोमोसेप्ट को जो है ना आप बस स्प्रे कर दें, अपने खुड्डों में भी कर सकते हैं, पानी के खुराक के फीडर्स पे भी कर दें। वो बहुत जबरदस्त चीज है, उससे कम से कम जो अगर उसके ऊपर कोई भी बैक्टीरियल कोई इशू है कुछ भी है, तो वो ग्राम पॉजिटिव वगैरह ग्राम नेगेटिव वो सब चीजें जो है ना उसको देखता है वो। तो वो जरूर सही कोशिश है। करेंगे। मैं आपके तरफ से जो है ना बाकी व्यूअर्स को भी कहूंगा कि उसको इस्तेमाल जरूर करें। तो चलें, थैंक यू वेरी मच। अकरम अकी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा उनको लाइव लेंगे, टाइम बहुत हो गया, मैं कहा पौने पौने 12 हो चुके हैं, तो पता नहीं अच्छा। लोगों को हमारी बातें कहीं बोल ना, क्या ख्याल है? जी 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 जी। असल में हम लोग कहानियां नहीं सुना आपका रहे ना, हम लोग कार जरा थोड़ा सा। कार भाई, आपका भी बहुत हाँ, शुक्रिया। आपने ये प्रोग्राम आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। और करते रहिएगा नहीं नहीं, इंशाल्लाह अब ताला। कह रहा हूँ कि इसको ना लेकर चलें, चाहे आप अपने प्लेटफॉर्म से लेकर चलें चाहे मैं अपने से, हम लोगों को ये चीजें बतानी चाहिए, बेसिक्स पे आना चाहिए लोगों के।
अपने एक्सपीरियंस जी शेयर भाई, करने चाहिए यार। हम लोग ना बिल्कुल उन बिल्कुल। चीजों पे ले जाते हैं, कोई फायदा नहीं है, या एक आधी चीज को जी पकड़ जी लेते हैं। बेसिक्स जब तक बच्चे को, आप तो खुद भी माशाल्लाह टीचिंग से वाबस्ता है, मैंने देखा है, जब तक आप उसको अलिफ बे ABC बताएंगे नहीं, कैसे लिखनी नहीं करनी, उस टाइम तक वो आगे उसकी बेस नहीं बन सकती। जी जी जी। क्या ख्याल है? तो ये चीजें बिल्कुल बताना सही है। बहुत जरूरी है कि कैसे देना चाहिए। लॉफ्ट मैनेजमेंट जब तक नहीं होगी, असल में जितने भी अच्छे शौकीन है उनकी की सक्सेस जो है वो उसको देखेंगे तो पीछे उनकी लॉफ्ट मैनेजमेंट ही है, जो वो जी सही लेकर है। चल रहे हैं, कैसे ले, हर एक का डिफरेंट है। लेकिन उस चीजों को सामने आना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। अब यानी जरूरी नहीं कि हम लोग एज ए लेक्चरर के तौर पे उनको बताएं कि यार मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, मैं गंदम ज्यादा डालता हूँ, आप गंदम कम डालते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई वो नहीं बना हुआ कि यार अगर गंदम नहीं डालोगे तो कबूतर ठीक नहीं रहेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने उनके कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन ही पूरे करने हैं ना, वो डिफरेंट चीजों हाँ से जी हाँ पूरे जी। हो सकते हैं। ठीक है, सही तो बात। वो अगर हम लोग नहीं बताएंगे, से शेयर नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल से अभी भाई फायदा कोई नहीं हमारा। शौक के हवाले से सदका जारी है यार, इन चीजों को बताना चाहिए। मैंने थोड़ी सी कमी महसूस की थी, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैंने कहा यार इसको शुरू करें। बड़ा मुश्किल से मैं, आप तो माशाल्लाह आते रहते हैं और एक नॉन पर्सनैलिटी है, मैं तो आपको पता है हमेशा पर्दे के पीछे ही रहा हूँ। तो मैं नहीं लिखाई नहीं, करके खाली बुखार छोटा सा बुखार भाई बहुत अच्छा स्टेप है। आप आए इस पे, लाजमी इस पे वर्किंग करें। हम्म, जहाँ पे मेरी जरूरत है मैं हाजिर हूँ। मैं कोई नाउन पर्सनैलिटी चले, नहीं हूँ, मैं आपका आपका भाई हूँ। ठीक है। और नहीं नहीं जिन दोस्तों ने इस्लाम किया कमेंट्स में, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू, राजा जमील साहब हैं, निसार मलिक साहब हैं। ठीक है। और हाशिम महमूद साहब हैं, और भी काफी दोस्त हैं जिन्होंने इस्लाम किया है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। बस तो शुरू शुरू में है ना, ऐसा ऐसा लोगों को पता लगे कि हम टाइम रखा करेंगे तो इंशाल्लाह उसके ऊपर फिर लोग ज्यादा आएंगे। तो बात तो ये है कि चलें, ऑनलाइन व्यू ना करें, बाद में भी लोग देख सकते हैं कि क्या बात हुई है क्या नहीं हुई। तो जी जी चलें, जी, एक रिकॉर्डेड फॉर द भी देख। रिकॉर्ड रहेगा। चलें अभी भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद अकरम अकी साहब का भी बहुत 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 शुक्रिया, जजाकल्ला। तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट हुआ देखेंगे क्या कमेंट्स आते हैं, तो उसके बाद फिर देखेंगे कि आगे कैसे फर्दर करना है। कोई आपके भी जेहन में हुआ तो शेयर करें, सबको लेके चलेंगे साथ इंशाल्लाह। जी भाई साहब, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपका थैंक यू शुक्रिया। सर, अल्लाह अल्लाह। हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी बहुत बहुत भाइयों का, इम्तियाज बेग साहब वालेकुम अस्सलाम। बस इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे, थोड़ा सा टाइम हो गया ज्यादा। बाकी जिन भाइयों ने सलाम किया, किसी के अगर कोई क्वेश्चंस रह गए, इंशाल्लाह आगे क्वेश्चंस का भी शुरू करेंगे कि सवाल जवाब भी जरूर लेंगे, और कोशिश करें कि वो कमेंट्स में ना हो, खुद लाइव आए, उसके अंदर क्वेश्चन करें, और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह, मुझे क्योंकि थोड़ा सा नहीं मालूम इस चीज़ का कैसे यूज़ करते हैं, तो सीख जाएंगे, कोई नहीं ऐसा इशू। तो उसको इंशाल्लाह देखते हैं फिर कैसे लेके चलें इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सब भाइयों का, जज़ाकल्लाह। अल्लाह।